और सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। और देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, एयर मार्शल ए के भारती और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। तो देखिए, ये वही पल है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। 2:30 बजे और ठीक 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. Like yesterday, we'll have the opening statements by the three senior officers who are here with me. You all know them well now. However, for those who were not here yesterday, let me introduce you to them. In the middle, we have Air Marshal A.K. Bharti, Director General Air Operations, who will provide insights on the air domain. To his right is Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations. He will cover the land aspects. And to my immediate right is Vice Admiral A.N. Pramod, the Director General Naval Operations. Following these briefings, we will be having a few question and answers. May I now request the DG Air Operations to commence the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स
देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS, of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary.
I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO to cover his portion. धन्यवाद एयर मार्शल भारती। मैं आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स
या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है, और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए, और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. Good afternoon, ladies and gentlemen. To talk about the air defense capability, the Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted
under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdho Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. Thank you, Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं. शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए. Second, ladies and gentlemen, like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you are also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you.
हेलो हेलो सर, मैं आवाज़ आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को ये संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड Yeeha to be of Chinese origin. I would like to correct myself. The Yeeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right. चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेंड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। धन्यवाद। All right. 226. Sir, Aditya Raj Kaul from TV9 Network. Yesterday, the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DG ISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan
civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we are expected to do, and that is it. I'll come this side, 249. सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है? और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. Hi, sir. Thank you, sir. Snesh Philip here from The Print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. As I said yesterday, as I said earlier and yesterday, it is difficult to take everybody's questions, and the DGMers have to reach somewhere right now. So thank you for coming. Please send in your questions on paper. We will definitely answer them. Thank you. तो आकाशे शत्रुंजयी यानी आकाश में ही शत्रु को मार दो। आर्मी एयर डिफेंस ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया, लगातार दूसरे दिन डीजीएमओ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल बताई गई कि किस तरह से तीनों सेनाओं ने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीएमओ ने कहा कि हम अब भी युद्ध क्षेत्र में हैं।
हमारे जितने भी मिलिट्री बेस है वो स्टैंड बाय पे है, सिस्टम ऑपरेशनल है, नए मिशन के लिए हमारी सेना तैयार है। लेकिन बड़ी बात यही है जो कल भी कही गई थी कि हमारी लड़ाई आतंकवाद, आतंकियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने खुद ये लड़ाई अपने ऊपर लेते हुए आतंकियों का साथ दिया। कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों का जो पैटर्न बदला, इसी के चलते आतंकियों ने जिस तरह से देश में घुसकर हमला किया था, हमने देश में ही बैठे बैठे उन पर कार्रवाई की है। तो तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की पीसी और इसकी बड़ी बातें हमने आपको बताई है। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन हम हमारी ओर से संदेश साफ रखते हैं कि लड़ाई वॉर अगेंस्ट टेरर है, अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं। बिल्कुल। और देखिए, एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शिव तांडव स्त्रोत था बैकग्राउंड में, बड़ा सिंबॉलिक। आज एक बार बार लोगो वायुसेना का रिफ्लेक्ट हो रहा था पीसी के दौरान जी। विजुअल्स जो दिखाए जा रहे थे, वीडियोस कि आकाशे शत्रुन जहीन, ये संस्कृत का एक वाक्य है जिसका अर्थ है कि आकाश में शत्रुओं को नष्ट करो। तो ये बहुत सिंबॉलिक है। जिस तरह से तीनों हमारी सेना की यूनिट्स के सीनियर ऑफिसर्स अपनी बात रख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो बात डीजीएमओ राजीव घई साहब ने कही कि हम अभी भी युद्ध जैसी परिस्थितियों में हैं, हम अभी भी युद्ध क्षेत्र में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि मिशन अभी चल रहा है और हम युद्ध जैसे हालात में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कि हम युद्ध जैसी परिस्थितियों में हैं। दूसरा जो बात कही हमारे अपने भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिसर्स ने, उन्होंने कहा कि हमारा इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम जो है वो अभेद है, उसको कोई भेद नहीं सकता है, अचूक है। और यही वजह है कि जितनी भी टारगेटेड मिसाइल थी, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स या ड्रोन्स छोड़े गए, वो सब हमने बहुत टाइमली नष्ट कर दिए। और ये हमारा जो सिस्टम था, ये सिस्टम हमने बहुत पहले तैयार कर लिया था जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राजीव घई साहब ने कही, डीजीएमओ, और उन्होंने कहा कि हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं और अब जो लड़ाई होगी वो पिछली जैसी नहीं होगी। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगली लड़ाई जो होगी, जो भविष्य का युद्ध होगा, लड़ाई होगी, वो इस जैसी नहीं होगी जैसी ये हुई। तो ये बातें बता रहे हैं हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। मैसेज पाकिस्तान को साफ है, पूरी दुनिया को साफ है। और ये आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब जल सेना, थल सेना और वायु सेना के 3 सीनियर लेवल, मतलब सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, डीजीएमओ लेवल के ऑफिसर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं और प्रेस से आने वाले सवालों के जवाब बहुत ही कूल, रिलैक्स और कॉम बॉडी लैंग्वेज के साथ दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये मैसेज देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए, आज भी एक बात बार बार दोहराई गई कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं है जी। हम बार बार ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी कि हमारी लड़ाई है आतंकियों से। हम कोई युद्ध प्रेमी राष्ट्र नहीं है, हम कोई युद्ध लड़ना नहीं जानते। हम समझते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन अगर हमारी इंटेग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, उस पर कहीं हमला करेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा और ये ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये बात भी बार बार दोहराई गई है। तो बहुत साफ मैसेज दिया गया है। हमने आज फिर बताया कि हमने पाक के किन किन एयरबेस को नष्ट किया पूरी तरह से और कितना नुकसान हमने बताया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जी। शुभांगी, बिल्कुल शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जो कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जिस तरह से लगातार हमारे सेना प्रमुखों ने 2 दिन यही मैसेज दिया है और जितने कामली बैठकर उन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है, ये एक बिग मैसेज है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली सभी
विदेशों में बैठे उन तमाम बड़े नेताओं को जो भारत की ओर इस नजर से देख रहे थे कि भारत युद्ध चाहता है। भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत सिर्फ आतंकवाद का विनाश चाहता है। और चूंकि पाक की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थी, पाक सेना ने, पाक फौजियों ने आतंकियों का साथ दिया, इसलिए पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं, आतंक के खिलाफ हमने ये एक्शन लिया था। और ये एक्शन था हमने सिर्फ इसलिए लिया, कारण यह था कि हमारे डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान भेद नहीं पा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के मेड इन चाइना डिफेंस सिस्टम को हमने तोड़ दिया। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। तो अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी, ये बात भी सेना प्रमुख ने कही है। और साथ ही साथ आप ये देखिए, ये भी उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो ऑपरेशन था, कोशिश की गई कि कुछ इस प्रकार से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाए कि कैजुअलिटीज ना हो, सिविलियंस पर हमला ना हो, और इसमें हम सफल भी रहे। हमारे टारगेटेड मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और हमने सिर्फ आतंकी बेस कैंप्स को टारगेट बनाया, ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट बनाया और बहुत प्रिसाइसली इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, ताकि हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह सके कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी। हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं बोला, हमारे डिफेंस सिस्टम को हमने इतने मजबूती से रखा कि हमारे देश में जिस तरह से हमला हमारे देश के नागरिकों पे हुआ, उसका करारा जवाब पाकिस्तानी डिफेंस को मिला। पाकिस्तान की सेना में अंतर्युद्ध चल रहा है। अगर अंतर्युद्ध नहीं चल रहा तो अंतर्युद्ध की संभावना है। आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। होए न प्रीत, रामचरितमानस की चौपाई को याद करते हुए एयर मार्शल ए.के. भारती ने एक बड़ी बात कही और यह भी कह दिया कि समझदार को इशारा काफी है। जब उनसे सवाल किया गया कि पहले शिव तांडव स्तोत्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कल हुई थी शाम को और आज की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ हुई, तो इससे हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में भारतीय सेना भी तैनात है। हमारे ऑपरेशंस लगातार जारी रहेंगे अगर हमारे देश की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा। तो आकाशे शत्रुंजयी एयर डिफेंस की ओर से ये जो मोटो है, आर्मी एयर डिफेंस का ये मोटो है जो कहता है कि आकाश में ही शत्रु को मार दो। तो भारत पाक के बीच बातचीत का समय बदल गया है। अब शाम को यह बातचीत होगी जो आज दोपहर 12 बजे होनी थी। हॉटलाइन पर बात होगी, यह भी समझ लीजिए। युद्ध विराम पर भी चर्चा होगी। जिस तरह से सीज फायर पर दोनों ही देशों की सहमति के बाद पाकिस्तान नहीं माना था, पीठ पर छुरी घोंपने की इस देश की आदत कभी नहीं गई और ऐसे में पाक के नापाक इरादे बेअसर रहे। आज शाम की ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सीज फायर के बाद हालात तो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए आज की ये बातचीत हॉटलाइन पर होगी। युद्ध विराम पर दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच चर्चा होगी। तो बातचीत का समय बदला गया है। पहले यह समय दोपहर 12 बजे के आसपास था, लेकिन अब यह समय शाम का है और शाम को ही अब इस विषय पर बात होगी दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच।